नमस्ते सारे अभिभावकों, टीचर्स और बच्चों का परीक्षा पर्व 3.0 में स्वागत है। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। डॉक्टर नागपाल इज अ renowned psychiatrist with special focus on child, adolescent and women's mental health and well-being. नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर नागपाल, adolescents जो हैं इंडिया में, they are a vital population, Yeah, right? of course. So, what are the challenges which are faced by them, especially given the times that we are going through? Thank you, Nivedita ji. In fact, that's a wonderful question. I feel adolescence has come to the point where they need a lot of attention in terms of their identity, their value, their own ability to transform the culture, the nation, and also the transaction between the parents and the students as such. आप देखिए, आप किशोरों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के आंकड़े बताते हैं आर पॉपुलेशन ऑफ एडोलेसेंट्स इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. I mean, nearly about 25% of our population is only adolescents, 10 to 19 years. Now, that is a huge amount of human resource, a huge amount of energy. And what are we doing with it? We need to bring them forward in terms of their vision, you know, from the eyes of the adolescent, from the heart of the adolescent, from the head and the hand of the adolescent, we need to see the world. And precisely that is the reason why, if you look at many of the programs in the country, which are focused on school education, on school health, they are actually taking into consideration the importance of the adolescent population in our country. One, because that is a point in time when rapid changes are happening in the body, in the mind, in the human relationships, parent-child relationship, independence about thinking regarding the career, independence about my own identity. अब आप देखिए, आपको याद होगा कि एडोलेसेंस में हम लोग सब अपने टाइम में भी एक अपनी पहचान ढूंढते थे. Who am I? What am I? What am I going to be tomorrow? What's my identity? What's my recognition in the school, in the family, in the friends, in the gang? Now, these are part of emotional changes. And we can imagine with the COVID-19 now, and adolescents actually, by and large, being at home, घर पे रहने के बाद उनके challenges, उनकी identity, उनके concerns, उनकी needs कितनी change हो रही हैं. So 21st century adolescent is about a great amount of leadership for the country. I think that's a population we need to understand from their heart and soul. मैं कहूँगा उनकी रूह को समझें, उनके तजुर्बे को समझें, वो क्या चाहते हैं हमारी दुनिया से, वो क्या ज़रूरत है अपने नेशन से चाहते हैं. We want our adolescents to be in India, to make in India, to be in India, to work in India, to talk and smile and laugh in India. So we need to listen to them, isn't it? So that's my view of adolescence. Yeah, I mean, I think they're one of the biggest human resource Absolutely. that we have. Yep. क्योंकि ये परीक्षा पर्व है और जी. पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपके हिसाब से व्हाट आर द टाइप ऑफ स्किल्स वी नीड टू गिव आवर एडोलेसेंट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड टुमारो? Wonderful. Partly the extension of the question we discussed just now. Yeah. But I agree with you, निवेदिता मैम, कि कहीं पर शैली जो है, कौशल, स्किल्स जो आप कह रहे हैं, ये एडोलेसेंट्स के नीड्स के साथ साथ बनने ज़रूरी हैं. हमने बात करी उनकी ज़रूरतें क्या हैं, हमने बात करी उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनका मन क्या कहता है. मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बहुत याद आता है, मन की बात. वो कई बार, और परीक्षा पे चर्चा पे भी उन्होंने कई बार कहा है कि किशोरों की दुनिया को समझना कितना ज़रूरी है. ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे कल क्या बनेंगे, क्या डेजिग्नेशन होगी उनकी. हमें वो स्किल्स उनको देने हैं कि वो क्या मन से करना चाहेंगे. वॉट दे विश टू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट दे कैन बिकम इन लाइफ. सो अपने मनोकामना से, मनो इच्छा से उनको हमें वो स्किल्स देनी होंगी. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ वेरी क्लियर. बेस्ड ऑन वॉट यू आर आस्किंग, we need to provide an environment so that any skill, any ability which a adolescent is born with is developing in the schooling years, is also developing in the family. For example, if it is about music, it is about art, it is about cooking, stitching, games, sports, even things like journalism. Not just about conventional careers. They say that let me have the passion and emotion to develop what I want to do in life. To me, that is a skill. We need to identify those skills in the family also. Encourage them, give them the enthusiasm, give them the platform
constantly see the world from their side, you will find you're giving them the skills जिसको हम जीवन कौशल कहते हैं, जिसको हम जीवन शैली कहते हैं, apart from understanding the need of the adolescent. So the need of the adolescent and the skill of the adolescent combine to produce a confident young citizen of the country who is also getting ready for the Pariksha Parv, the celebration of the exams. हम उसी से रिलेटेड एक अगला सवाल है, जी. बिकॉज पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव आल्सो जॉइंड अस. Sure. व्हाट कैन बी डन बाय पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स कि घर में एक जो माहौल है वो परीक्षा के दौरान जो एक माहौल है दैट इज अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एटमॉस्फेयर फॉर द चिल्ड्रन, That's बिकॉज very इट्स अ important. वेरी वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. आपने एक बहुत अहम सवाल छेड़ा है यहाँ पर, एंड आई फील फैमिली इज़ आवर ग्रेटेस्ट स्कूल इन लाइफ. यू विल एग्री विद मी, आई एम श्योर. या परिवार सबसे प्रथम, सबसे अहमियत वाला स्कूल है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है वहाँ पर, बच्चा माँ बाप के साथ, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बड़ा होता है, भाई बहनों के साथ बड़ा होता है. वो जो छोटी छोटी बातें, एक मासूम बातें हैं, एक ऐसा पहल होता है ज़िंदगी का जहाँ बच्चा मुस्कुराना सीखता है अपनी मम्मी के साथ और आगे चलता है. क्रॉलिंग है, सिटिंग है, रनिंग है, और जब वो नर्सरी स्कूल में आके बड़ा होता है, चाइल्डहुड से गुजरता है, किशोर अवस्था में आता है, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परिवार का रोल ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, और हमारी नई शिक्षा प्रणाली जो है देश की, हमें गर्व है दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉक्स अबाउट द सोशो इमोशनल इंडिकेटर्स, the holistic development indicators as so important for the child, as so crucial in the school, in the family, in the society, with the media also. So parents' role becomes foremost in building up an aware adolescent, जिसको हम एक जानकार, समझदार और जिम्मेवार adolescent कहते हैं. Aware, responsible and empowered. And that requires building up the self-esteem. आत्मविश्वास जो होता है वो फैमिली के साथ साथ ही आगे बढ़ता है. फैमिली के दिए हुए जो उदाहरण होते हैं, एनेक्डोट्स होते हैं लाइफ के, मार्गदर्शक जो होते हैं माता पिता, उन्हीं के पहलुओं से, तो उन्हीं की गतिविधियों से, तो उन्हीं के एग्जाम्पल से तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली एक कंपेनियन रोल है, एक फ्रेंड का रोल है, एक सार्थक और साथी का रोल है. हम इसकी ऊर्जा को कभी भी कम ना करें, पीछे ना छोड़ें. स्कूल तो एक समर्थन देता है, समाज एक समर्थन देता है, सॉलिडारिटी देता है, बट फैमिली गिव्स द वैल्यू टू माय लाइफ. या तो उस हिसाब से मतलब पेरेंट्स की जो एक रोल होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम्स. या एब्सोल्युटली. या it's your field, and so could you suggest some skills that children can gain so that उनका confidence बढ़ जाए, चाहे वो एग्जाम देने के लिए हो या otherwise in facing life? In fact, when we look at a change which occurs while we are, moving through the age of adolescence, for example, during the early adolescence, examinations are first time, the students start realizing that I have to complete a certain degree of accomplishment. They start feeling that they're being judged, and that becomes a parameter For accomplishment in the exam, for getting a certain degree of grades maybe. Though we all agree that we need to decode and move out from the, the rush for getting marks. आप भी मानेंगे कि marks and grades and A1, A2, 90, 95%. No, that is not the objective of education. That's not the objective of developing a child. The objective is to allow and give the opportunity to do the best. जितना बालक किशोर अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पैशन से कर सके, उसको एनकरेज किया जाए और करेगा. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई तुमको 95% मार्क्स लाने हैं या मुझे इतने सक्सेस लेके आना है तभी मैं एक अच्छा बच्चा माना जाऊंगा. नो, ये बाल अधिकार है. इट्स अ राइट ऑफ द चाइल्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी, टू गेट द एम्बियंस, टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ एबिलिटी टू complete the task in my own speed, and that is what the early adolescence is all about. As you said rightly, निवेदिता मैम, कि जब वो समय आता है हायर क्लासेस में, 9th में, 10th में, 11th में,
when we are starting to prepare for the board exams, that is a different kind of a mentality. There's a different kind of a challenge, even charming. It is very important to feel that here is my identity. I'm making an identity for my future, for my +2, for my college life. And the new education policy also takes into consideration how we look at a complete 360-degree development of the human being at that stage. It is not the objective of completing the board exam. It is the objective of realizing one's own complete potential. एक इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है हर इंसान में. वो चाहता है कि संपूर्णता से मेरा एक विकास हो, मेरे को मौका मिले. मैं समझता हूँ दैट इज़ द टाइम व्हेन लर्निंग स्किल्स बिकम माय एग्जामिनेशन स्किल्स. द वे आई लर्न, द वे आई इम्बाइब नॉलेज विदाउट ओनली मेमोराइजिंग. जो कहते हैं ना कि खाली रट्टे नहीं करने हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझें, हम टीचर्स से मदद लेके, अपने फैमिली से मदद लेके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करें. एक तरीका होता है कि जो हम नोट्स बनाते हैं या हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए से फॉर एग्जांपल हम एनसीईआरटी किताबें जो पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तरीके से विस्तार रूप से हर सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है. बट हम उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन स्टडी स्किल्स को हम कहीं पे नोट करते जाएं और एग्जामिनेशन के तरफ जब निकलते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या था. तो कुछ बच्चे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ बच्चे याद रखते हैं कि भाई वो जो चैप्टर 4 था हमारी बायोलॉजी की किताब में या सोशल साइंस की किताब में, उसमें मुझे 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ रहे हैं. वो जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जिसको हम लोग कई बार लाल से, एम्बर से या ग्रीन से फ्लोरोसेंट पेन से मार्क कर देते हैं, या किताब के साइड के मार्जिन में हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स लिख देते हैं, वो ज़रूर याद आएंगे आपको. उनकी एक अप्रोच होती है, वो उस पर ध्यान दें कि कौन से चैप्टर्स में कौन से की कमांडमेंट्स जिनको कहते हैं, एक पाई डायग्राम होता है, या कहीं पर एक हम वेब बना लेते हैं एक एम्प्टी पेज पर, एक रजिस्टर में जो की पॉइंट्स हम लिखते जाएं. तो कहने का मतलब यह है कि अपने अपने तरीक़ों से बच्चे पढ़ते हैं. कुछ बच्चों को बहुत अच्छा याद रहता है जब वो थोड़ा सा बोल के पढ़ते हैं. मुझे याद है कि कोई चैप्टर में अगर हम बोर हो रहे थे और रिवीजन का टाइम है, परीक्षा से 1-2 महीने पहले की बात है, तो हम थोड़ा सा ज़ोर से चिल्ला के पढ़ते थे. तो कई बार ध्यान अच्छा हो जाता है, बिकॉज यू मे बी फीलिंग अ लिटिल ड्राउजी और यू डोंट वांट टू, बोरिंग लग रहा है बार बार. तो अगर हम बोल के पढ़ते हैं तो तवज्जो अच्छा हो जाता है, ध्यान अच्छा चला जाता है. सो रिमेंबर, योर एबिलिटी टू रिवाइज ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन इज़ योर मेथड. यू अडॉप्ट अ मेथड. आप उस पर नोट्स बनाएं, आप उसके कमांडमेंट्स लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें, और कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव मेथड जो स्टडीज़ का होता है आपका, वो आपका मेथड है. उसमें आपको कहीं भी किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड हु हैज़ बीन रिकॉर्डिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन, ऑडियो रिकॉर्डिंग वॉइस कॉर्डर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. तो जब वो खाने का टाइम होता है, डिनर का टाइम या इवनिंग वॉक का टाइम, थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स करते हैं, तो वो अपने ईयर प्लग पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ऑडियो में उन्होंने खुद ही अपनी आवाज़ से रिकॉर्ड किया था. कितना अच्छा तरीका लगा, इनोवेटिव मेथड है. ऐसे ही अपने आप फादर या मदर के साथ बैठ के, जिनके पास खूब टाइम है रिविजन के लिए, उनके साथ एक चैप्टर डिस्कस कर लें, उनके साथ कोई टॉपिक अपने फ्रेंड्स के साथ कर लें. आप डिस्कशन को अपने आप से या अपने घर वालों के साथ ज़रूर जारी रखें. टीचर्स तो हमेशा हैं हमारे लिए, हमारे एजुकेशन वॉरियर्स तो हमेशा हैं, बट इनोवेटिव स्किल्स ऐसे टाइम पे काम आती हैं, मेरा ये कहना है. सो डॉक्टर नागपाल, आप कह रहे हैं कि सबके अपने सबका एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, और हर बच्चे को वो अपना एक इंडिविजुअल तरीका आइडेंटिफाई करना है और उस पर उसके साथ लगे रहना है और अपने रिवीजन करने और अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करना है, ताकि ये जो परीक्षा का जो एक माहौल होता है वो कम स्ट्रेसफुल. बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि इन्वॉल्व करना. हम अपने फैमिली को कहें कि आप आइए मेरे साथ बैठिए और हम चर्चा करें. अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं पूरे देश के बच्चों के लिए, तो हम परिवार में परीक्षा पे चर्चा क्यों ना करें, और हम अपने दोस्तों से भी करें. जब चर्चा होती है तो याद ज़्यादा अच्छा होता है, और जब याद होता है तो हम उसके फाइनल पॉइंट्स जो होते हैं, कहीं पे इमेजिंग करते हैं ना, हम जैसे याद करते हैं तो इमेज भी आती है, अरे उस चैप्टर में वो डायग्राम मुझे याद आ रहा है, झट से उसको एक रफ पेपर पे लिख लिया, उसमें से क्या क्या याद आ रहा है. दीज आर स्मॉल मेथड्स विच आर एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल फॉर द एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स.
डॉक्टर नागपाल, और ये हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को फील करते होंगे कि लाइफस्टाइल और जो हेल्थ फैक्टर है जी, दैट्स समहाउ एट क्रॉस रोड्स राइट नाउ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। तो क्या ऐसा करें जो बच्चे हैं, जो फैमिली है उनके साथ, उनको कैसा सपोर्ट करें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द डाइट एंड हाउ डू दे रिमेन एक्टिव व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स? Rather, I'll take a broader look to your question. It's such an important part, Nivedita ma'am. One, because lifestyle का जो word होता है वो एक परिवार के लिए उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर नई बदलती हुई दुनिया का स्टाइल है। नहीं, लाइफस्टाइल वो है जो हमारे रोज़ गतिविधियां जो होती हैं, रोज़ की हमारी लाइफ के पहलू जो होते हैं, हम उनको कितना अपनी ज़िंदगी में ढाल के अडॉप्ट करके चल रहे हैं। बिकॉज़ आपको मैं एक यहाँ पे फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स जो हैं, इंक्लूडिंग जो अर्बन हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े शहरों में, महानगरों में स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि वो किशोरों में भी बहुत बढ़ रही हैं, एडोलेसेंट्स में भी बढ़ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स जैसे कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट की या ब्रेन की हैं, जो यंग अडल्ट्स में भी आजकल बहुत दिखाई दे रही हैं, कैंसर्स हैं। ये आप देखेंगे कि बड़े नगरों में, महानगरों में खासकर जो लाइफस्टाइल है, जलपान खान पीन का जो एक तरीका है, क्या इंसान रोज़ अपने भोजन में लेता है, कौन सी चीज़ें हम खाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें अब स्कूल के किताबों में भी आ गई हैं। आपको याद होगा कि ये कई बार एक ग्लोबल रिसर्च में, वर्ल्ड वाइड और हमारे देश में भी बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है, मैदा है, आलू है, शक्कर है, ऑयल है, ये सब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक एंटरटेनमेंट फूड हो जाता है जो ईज़िली बाज़ार में मिल जाता है, मॉल्स में मिल जाता है। कभी कभी अच्छा है क्योंकि वो एक अपनापन भी होता है, सब मिलके रिजॉइस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं। लेकिन हमको याद रखना ज़रूरी है कि ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां भी इन्हीं वजह से बढ़ रही हैं। जैसा आपने ठीक कहा कि डाइट के साथ साथ हमें एक्टिविटी भी तो फिर बढ़ानी चाहिए। आप प्रोटीन्स को बढ़ाएं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसे एग्ज़ाम में टाइम में खासकर जो किशोरों के लिए, आप देखिए वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं। उदाहरण पे सोयाबीन है, स्प्राउट्स हैं, पनीर है, दूध है, दालें हैं, न्यूट्रेला नगेट्स वगैरह हैं। ये चीज़ें हमारे जलपान में ज़रूर होनी चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन में तो फिश है, चिकन है, एग है, ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। और बैलेंस डाइट में आप जो भी कर लें, आप वेजिटेरियन ले लें, नॉन वेज ले लें, लेकिन बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स का जो आंकड़ा है थोड़ा ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें और बहुत ही कम तादाद में ऑयल का यूज़ करें। ये परीक्षा के टाइम पर भी परिवारों ने भी फॉलो किया है और बच्चों को लगता है कि हाँ भाई, कंसंट्रेशन, अटेंशन, एबिलिटी टू रीड, फ्रेशनेस जो होता है और ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। एक्टिविटी पर हम अभी आते हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि अब देखिए, भोजन है, जो भी जलपान है, आप लिक्विड्स भी लेते हैं। आपसे गुजारिश है पेरेंट्स और बच्चों से, टीचर्स से भी, कि कोकोनट वाटर है, लेमन जूस है और दही की छाछ है, बटर मिल्क है, ये सब टाइप के कई लिक्विड्स हैं जो ज़्यादा लेने चाहिए। ट्राई टू अवॉइड हाई कैलोरी ड्रिंक्स, है ना, जैसे कोलाज हैं, बिकॉज इनसे नुकसान तो नहीं है चलिए, लेकिन कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है, बट इमीडिएट रिलीफ बच्चों को लगता है, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन हाई कैलोरी ड्रिंक्स के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, आप सब जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी साथ साथ ज़रूर रखिए। आप 10 मिनट की एक्सरसाइज, आप मानती हैं कि 10 मिनट्स भी अगर दिन में 3 बार खाने से पहले कोई भी एक्सरसाइज हो, मैं तो कहता हूं कि अब कोई ना कोई छोटा मोटा, जैसे लॉकडाउन का समय है या कन्फाइनमेंट का समय है घरों में, आप स्किपिंग कर लें। आप घर के अंदर ही जो एक ही जगह पे बच्चे जॉगिंग भी कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी कई बार कर रहे हैं, थोड़े स्ट्रेचिंग कर लें। जैसे कहते हैं कि सूर्य नमस्कार के आसन हैं, इतना खूबसूरत तरीका है अपने आप को फिट रखने का। 12 आसन आप बैठे बैठे सब लोग मिल के एक ऐसा कल्चर कर सकते हैं। और थोड़ा जहाँ मौका मिला अपना
जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हुए आप वॉक पे जा सकते हैं, घर के आसपास पार्क में चले गए, तो थोड़ा टाइम निकालिए, कंसंट्रेशन अटेंशन पढ़ाई का भी बढ़ेगा, मेमोराइजेशन भी बढ़ेगा। और अभी मैं और निवेदिता मैम बात कर रहे थे कि कुछ हमारे रिसर्च में, दुनिया भर के भी रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिनको हम हैप्पी केमिकल्स कहते हैं। हमें है बिल्कुल ना जी? वही मैं आपसे बोलने वाली थी, जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ना सिर्फ हाँ। स्फूर्ति आती है, फिजिकली फिट रहते हैं, बल्कि मन भी अच्छा रहता मन है। भी अच्छा रहता है, बिल्कुल। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एंडोर्फिन्स होते हैं, कहते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद, जॉगिंग वॉकिंग रनिंग करने के बाद, या 10 मिनट बैडमिंटन खेल लिया या बास्केटबॉल खेल लिया या थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रेस लगा ली, उसके बाद कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं जो हमें स्फूर्ति तो देते ही हैं लेकिन खुशी भी देते हैं। यू फील हैप्पी, यू फील स्ट्रॉन्गर। सिमिलरली डोपामिन, सेरोटोनिन, ऐसे कई ऐसे केमिकल्स हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि बायोलॉजिकल रिसर्च भी बताती है कि चंद क्षणों के लिए थोड़ी एक्सरसाइज पढ़ाई नहीं केवल मन को भी खुश रखती है। डॉक्टर नागपाल, हमने एक्सरसाइज के बारे में बात की, हमने जी। न्यूट्रिशन डाइट के बारे में बात की। एक जो तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए तो है ही है, दैट इज स्लीप। जी जी, स्लीप बहुत एंड रेस्ट बहुत आर जरूरी है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर लर्निंग कैपेसिटी। एब्सोल्युटली। So, what are your views on it, and how would you recommend that the children sleep better? आई थिंक यू हैव टेकन अप अ वेरी क्रूशल टॉपिक फॉर अर्बन इंडिया एटलीस्ट। और मुझे लगता है जैसे अभी हम बात कर रहे थे, समय परीक्षा का है, प्रोत्साहन बच्चों का बहुत खूबसूरत है, एनर्जी लेवल्स भी हैं, बट ये कि हाँ कभी कभी सुस्ती भी आ जाती है क्योंकि ज़्यादातर तो फैमिलीज़ में और घरों में ही बैठे हैं। लेकिन देखिए, सबसे अच्छा एक जो शिक्षा का एक उदाहरण क्या है बताइए, जो कोरोना के टाइम में सीखने को मिला है। यू एग्री Nivedita that the most important lesson is that we need to adapt to change, Definitely. isn't it? Very, very important. So परिवर्तन के साथ जूझना, एक चेंज के साथ अडेप्ट करना, शायद कोविड-19 ने सबसे बड़ा लेसन हमको ये सिखाया है। बिल्कुल। और अपनों के साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट कैसे करना, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। And this is such a wonderful, beautiful lesson given to us by nature also. Yeah. That we need to look at nature, the plants, you know, the birds, the other animals, how they are smiling, they are happy. And human beings also can be similar, taking care of themselves, taking care of the people who matter. मेरे पास कितने हज़ारों फैमिलीज़ पिछले एक साल में निवेदिता जी आए हैं जिनमें बच्चों को लगा कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी बड़ी वैल्यू है हमारे फैमिली में। नाना नानी दादा दादी के साथ बच्चों का वार्तालाप कितना बढ़ गया है। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि एक जो आराम है, रेस्ट है और स्लीप है, मैं समझता हूँ वो केवल जो हमारे बॉडी और माइंड को रेस्ट और स्लीप देने का आधार है, सिर्फ वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आपस ही चार जने मिलके जब चुटकुले शेयर कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, वो भी तो रेस्ट है। तो रेस्ट के पहलू अलग अलग हैं। हम आते हैं अभी स्लीप के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरा ये एक उदाहरण देना जरूरी था क्योंकि मनोदिशा के अनुसार देखें या हम साइकोलॉजिकल एक फैक्टर जो अभी सीखने को मिल रहा है, दोबारा ज़िंदगी सिखा रही है, वो है कि अपनापन, आपसी माहौल, एक हंसी उल्लास का जो माहौल है, एक हैप्पीनेस का, एक ह्यूमर का जो माहौल है। ह्यूमर हैज़ अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन आई हैव सीन, Yes. isn't it? Takes away the stress. Yes, wonderful. Stress management through humor in the family. So remember, एल्डर्स के लिए भी ये मैसेज है, अभिभावकों के लिए जैसा आपने बताया, और बच्चों के लिए भी। हम मिलके हाथ मिलाकर एक जो सॉलिडारिटी फैमिली सिस्टम की है, टीचर्स की मदद ज़रूर लें, टीचर्स का सहारा ज़रूर लें। मैंने पहले बताया था कि वो हमारे एजुकेशन वॉरियर्स हैं। सैल्यूटेशंस टू ऑल आवर टीचर्स। आई कम टू अंडरस्टैंड we have more than 80 lakh teachers in our country. Such a wonderful education system, nowhere in the world. We have more than 250 million students on the online education. Where in the world such a remarkable achievement is possible? So we need to take the school as a family, and family becomes the school also during the COVID-19. Now that's the spirit of taking humor, attachment, interaction, bonding. एंड ये भी मैंने देखा है, कई बच्चे कहते हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों से भी उनको रिलैक्सेशन बहुत मिलता है, क्योंकि प्रेशर पढ़ाई का नहीं होता। सिर्फ ये प्रेशर नहीं होता कि चलो बस अब
एग्ज़ाम के बारे में सोचो, किताब के बारे में सोचो, वो भूल जाओगे, ये मेमोरी पीछे रह जाएगी। थोड़ी देर के लिए अगर कोई गाना सुन लिया या टीवी देख लिया तो जो फिज़िक्स के सवाल थे वो सारे भूल जाओगे। ऐसा गलत है। हमें माइंडसेट को चेंज करना, जैसे नेचर हमें सिखा रहा है, तो स्टडी टेबल से भी हमें 5-10 मिनट के लिए हटकर माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। बात अब आती है स्लीप के ऊपर। बहुत आवश्यक है। मैं एक उदाहरण से स्लीप के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी भी चाहती है कि जो पूरा दिन हमको इतना सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी जो है, वो पढ़ाई में हो या पापा काम पे जाते हैं, मम्मी पूरा दिन मेहनत करती हैं घर को संभालने में, और कहते हैं ना कि हेड, हार्ट और हैंड्स, हमारे द 3H अप्रोच, पूरा दिन मेहनत करता रहता है ना? आप मानती हैं मेरे से? बिल्कुल। तो जब हेड, हार्ट और हैंड्स पूरा दिन हमारे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए दिमाग में सोच विचार चल रहा है, दिल से पैशनेटली वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और अपने हाथों से कई बार लिख भी रहे हैं, कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो बॉडी कहीं ना कहीं हमारा जो एक सोमैटिक कंपोनेंट है, ह्यूमन बॉडी भी 7-8 घंटे का आराम चाहती है। 24 घंटे की दिनचर्या में 1/3, 1/3 बॉडी चाहती है मुझे भी आराम करने दो, क्योंकि ब्रेन जो हमारा होता है बहुत ही अद्भुत ऑर्गन है। जो हमारा CPU है, जो ब्रेन है हमारा, वो भले हमको कभी कभी आराम करने पे न्योता देता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं, जैसा आप बता रही हैं, कि नींद का जो एक महत्व है, बिल्कुल समाज और दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इनसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना इस वक्त दुनिया का सबसे प्रथम लक्षण माना जा रहा है कि भाई हमें नींद नहीं आती है। कई बार डॉक्टर्स इस लक्षण को रोज़ाना सुनते हैं, हर नागरिक से सुनते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सुनते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है। अब भाई वो ज़माना कहाँ चला गया जहाँ लोग 11 बजे 10 बजे तो खराटे ले लेते थे एकदम गहरी नींद में। रीज़न ये है, कई कारण है, सोशल मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है 3-4 बजे तक, और जब हम टेंशन से, कभी परीक्षा की टेंशन से सोते नहीं हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि 2 बज गए, 3 बज गए, कई बार बच्चे 4 बजे सो रहे हैं। बॉडी का रिदम ख़राब हो जाता है। जो हमारे जूसेस होते हैं, जो हमें खाना हजम करते हैं, हार्ट को ध्यान देते हैं, लिवर को ध्यान देते हैं, किडनी का फंक्शनिंग देखते हैं, जो ब्रेन से कंट्रोल होता है, वो भी स्ट्रेन और स्ट्रेस का भागीदार बन जाता है। सो बॉडी डिमांड्स दैट जो हमारी डीप स्लीप होती है, जो अच्छी रिस्टोरेटिव स्लीप होती है, जो बॉडी को रिजुविनेट करती है, वो 12-1 बजे से लेके 4-5 बजे तक की नींद बहुमूल्य है। वो टाइम ज़रूर दें अपने बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, अटेंशन भी बढ़ेगा, आप खुश भी रहेंगे, एंड यू विल फील स्ट्रॉन्गर एंड ब्राइटर ऑल्सो। स्लीप की बहुत आवश्यक जी। जो एक उसके बारे में आपने बात की, आपने सोशल मीडिया भी मेंशन किया, जी, हाउ जी। इट इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन इन द लाइव्स ऑफ, Absolutely. एक्चुअली इन द लाइव्स ऑफ एवरीवन। जी। तो सोशल मीडिया पे जो इतना समय व्यतीत करते हैं और उसकी वजह से जो इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको कैसे बैलेंस किया जाए? एंड इट्स अ प्रॉब्लम आई थिंक probably no one has been able to solve. Yeah, yes, I completely agree with you, Nivedita ma'am. The issue is not about what social media does to us. The issue is about what we do to social media. हम सोशल मीडिया को महत्व क्या दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बना रहे हैं। हम अपने ज़िंदगी को सोशल मीडिया से कम्प्लीटली इनसेपरेबल बनाते जा रहे हैं, और ये सवाल केवल बच्चों के लिए नहीं है, बिल्कुल, ये बड़ों के लिए भी है, बिल्कुल, अभिभावकों के लिए भी है। बिल्कुल। You will be surprised, Nivedita, there are students who come and ask us, parents, father, grandfather भी तो पूरा दिन मोबाइल पे रहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? बिकॉज बच्चे आई टू आई, आँखों से आँखें आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। उनको वो समय दीजिए, उनको वो प्यार मोहब्बत से कांटेक्ट दीजिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि भाई पापा बात तो कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने लैपटॉप पर है। तो बच्चे मजाक में भी कहते होंगे, लेकिन इसमें एक सीरियस बात तो है जी। ये तो ज़रूर है कि कौन इंसान जो उभर रहा है, ब्लॉसम हो रहा है, खिल रहा है, एक आपके घर के बगीचे में बड़ा हो रहा है, वो कौन बच्चा नहीं चाहेगा
कि उसको एक नज़ाकत से, प्यार से, उसकी नज़रों को, उसके स्माइल को इम्पोर्टेंस दिया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों है? सोशल मीडिया हमारे घर में 4 जनों का क्यों नहीं है? हमारे घर में 12 जनों का क्यों नहीं है, जो एक इंडियन ग्रेट फेमस जॉइंट फैमिली होती है? क्या हम सोशल मीडिया नहीं है खुद? क्या हम जो 6 जने, 10 जने, 12 जने बैठ के एक डिनर साथ में कर सकते हैं, क्या वो सोशल मीडिया नहीं है? क्या एक दूसरे की खबर लेना सोशल मीडिया नहीं है? तो मेरा जो सोच है, मैं बच्चों से सीख रहा हूँ, और बच्चे कहते हैं कि भाई सोशलाइजेशन हमारे घर संसार में भी अच्छा हो, तो शायद पॉइंट नंबर 1, हम अपने मोबाइल फ़ोन या टीवी या वीडियो पे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट ना होंगे। सो दैट इज़ वन area which has to be kept in mind when we look at the addiction of social media. And I feel social media for education is also very important, but social media for entertainment, try to limit it. बच्चों से एग्ज़ाम के टाइम में ये निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं? आप म्यूज़िक है, गार्डनिंग है, आप आर्ट वर्क है, या आपके फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ज़रूर रहिए, लेकिन सीमित रखिए, बिकॉज परीक्षा से, पढ़ाई से ध्यान थोड़ा सा हटने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है जी। फ्रेंड्स प्ले अ वेरी crucial role in the lives of adolescents, Okay, of yeah, children. of course. So how what should be that balance? कितना interaction होना चाहिए बच्चों का अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जामिनेशन के टाइम में, so that पढ़ाई अफेक्ट ना हो? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इंटर रिलेटेड सवाल भी है, क्योंकि जी, mentally it helps them, that interaction helps them. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और अगर हम 2 पल के लिए, आप लोग सब जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा 2 पल के लिए, क्षण के लिए अपने बचपन को याद करिए वो दिन जब ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा प्रभाव मोबाइल फ़ोन का नहीं था, शायद टेलीविज़न पे भी इतने ज़्यादा चैनल नहीं थे, लेकिन आप याद करिए कि दोस्तों का महत्व कितना ज़रूरी होता था। आई एम श्योर यू ऑल्सो रिमेंबर योर स्कूल फ्रेंड्स अ लॉट, इजंट इट? या सो स्कूल के जो पल होते हैं, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं, वो ज़िंदगी भर के रिश्ते होते हैं, ज़िंदगी भर के इतने सुंदर एक पहलू बन जाते हैं, दैट वी प्रोबेबली नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज in certain degree of their ability to transform our perception. तो दोस्तों के साथ हम वो दुनिया बिल्कुल भी ना छोड़ें जिसमें, जैसा आपने कहा, वार्तालाप है, एक इंटरेक्शन ऐसा है जहाँ पे हम इमोशनल बातें भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दोस्त हमारा सहपाठी भी होता है, सार्थक भी होता है, डायरेक्शन भी मिलता है। मैं तो कहता हूँ एग्ज़ाम के टाइम में, खासकर अब कोविड-19 के टाइम पे, जब स्कूल्स में हम बच्चों को देखते हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, स्कूल्स खुले नहीं हैं, ओपन नहीं है, तो लोग अपने घरों पर ही हैं, कोई बात नहीं, मम्मी पापा के नॉलेज से आप अपने दोस्तों से ज़रूर बात करिए, आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग करिए, यहाँ तक कि आप बर्थडेज़ हैं, आपके इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, आप सेलिब्रेट करिए, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ही। नेवर थिंक दैट फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट यू, इवन इफ इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लॉकडाउन और कोरोना के टाइम ऐसा है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू हेल्प यू लर्न बेटर, बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, एंड डिस्कशंस ऑफ योर सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निवेदिता जी, कई बच्चे कहते हैं कि जो मेरे को कई बार अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है परीक्षा के लिए, वो मेरे 2 दोस्तों ने, हमने एक कॉमन कॉल लगाई, हमने पुराने क्वेश्चन पेपर निकाले, और किताबों में जो सैम्पल पेपर्स हैं उनसे हमें आंसर मिल गए, नहीं तो हमें पता नहीं लगता भाई इसका जवाब कहाँ से मिलना है। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एडोलेसेंट्स एंड किशोर अवस्था के बच्चों के लिए खासकर, एक जो दोस्ती होती है वो हमारे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ही, मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम शाम के वक्त हो या डिनर के टाइम हो, उससे पहले टाइम अपने दोस्तों को दीजिए, सीखिए, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की बात करिए, मनोरंजन के टाइम पे मनोरंजन की बात करिए। डॉक्टर नागपाल, आपने इतनी आत्मीयता से इन सारे जो इश्यूज हैं उनको डील किया, आई एम श्योर बच्चों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई एक मित्र उनसे बात कर रहा है। जी जी, हाँ। तो हम अब कुछ प्रश्न लेने वाले हैं, वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। कविता, शी इज अ पेरेंट एंड शी इज आस्किंग, सीबीएसई ने फिर जैसे एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, तो उससे बच्चे बार बार एग्जाम डिले होने से परेशानी फेस करते हैं।
उस परेशानी को कैसे कम करें, जो एक एंजाइटी हैपेंस बिकॉज द एग्जाम्स हैव पोस्टपोन्ड, एक अनसर्टेनिटी रहती है. हाउ डू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डील विद दैट? Thank you. I'm very happy that parents are coming forward with these queries and also घर संसार में, एक परिवार के संसार में ये बातें रोज़ाना होती हैं. लेकिन अब समय कुछ ऐसा है जहाँ पे इंसान को, इंसानियत को और देश को भी एक महामारी से जूझना है. वी हैव अ पैंडमिक. बट जैसा हम बात कर रहे हैं आज, मेंटल हेल्थ, साइकोसोशल सपोर्ट और कहीं पे हमारी मनोदिशा का भी एक ये बहुत बड़ा पैंडमिक है. बिकॉज एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के साथ उम्मीद हम कितनी रख रहे हैं कि वो बार बार इस बात से एडजस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कल होंगे, परसों होंगे. लेकिन क्योंकि ये अब ऐसा माहौल है कोरोना के टाइम का या कोविड-19 के टाइम का, मैं समझता हूँ दैट हमें लार्जर पिक्चर को अगर हम लेके चलें, देखिए इमीडिएट रिएक्शन तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का या कुंठा का होता ही है. बिकॉज जैसा आपने ठीक बताया कि अनसर्टेनिटी, कहीं ना कहीं पे निराशा, अरे भाई देखिए एक और महीना आगे चले गए. लेकिन आप ये देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण अभी क्या है हमारे लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट, है ना. आप मानते हैं. अब देखिए अगर सरकार स्कूल्स खोल भी देती, कितना मुश्किल है फैमिलीज़ को ये अपने मन से एग्री कर लेना कि भाई बच्चे को स्कूल भेज दें. बिकॉज अभी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि हम थोड़ा सा भी हेल्थ का रिस्क उठाएं. तो अगर ये अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने से जो हम देख रहे हैं, एक और वेव आई है कोरोना की, हम सबको हाथ मिला के दिलो दिमाग के साथ देश के जो पॉलिसीज़ हैं, देश के जो अपने गाइडलाइंस हैं, मुझे लगता है कि सोच समझ के हमारे लीडर्स हमें देते हैं, उसको हम फॉलो करें. और बच्चों को घर संसार में स्कूल की मदद से, मैं तो कहूँगा कि प्रिंसिपल, काउंसलर्स, टीचर्स की मदद से हम एडोलेसेंट्स को, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी एक सेलिब्रेट करने का मौका देते जाएं. किस चीज़ को? ज़िंदगी को, अपनेपन को, अपनापन, एक ज़िंदगी, एक घर के माहौल को, एक तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ को हम ये मौका देते जाएं. साथ साथ हम अपना रिवीजन, पढ़ाई का माहौल ज़रूर बनाते जाएं. परीक्षा आज नहीं तो कल तो होगी ही, लेकिन जो कंट्रोल, जो चीज़ें एक इंसान के हाथ में नहीं हैं और एक महामारी से जूझना है, हम अपने आप को पहले उन गाइडलाइंस को फॉलो करके सुरक्षित रखें, सेफ रखें और पूरे सपोर्ट के साथ वेट कर लें, माहौल बनाते हुए कि भाई परीक्षा की नेक्स्ट डेट आ जाएगी. फिर बात तो चंद हफ्तों की तो है. जी बिल्कुल. जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त जो एक स्टेट मशीनरी है उसके साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है. और इसमें अभिभावकों का जो रोल है वो बढ़ जाता है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अनसर्टेनिटी बच्चे फील करते हैं उसको वो कम करें. और एक बात और निवेदिता जी, अभी हाल ही में कल परसों में सुनने में आई है कि कितने इम्पॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव्स भी सरकार बच्चों के लिए सोच रही है. फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस हो सका कि कोई एग्ज़ाम नहीं भी हो पाता है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं. कि कई बार, अब जैसे लास्ट ईयर जो हुआ था, एक साल का एवरेज भी लिया जाता है. कई बार बच्चों को सुविधा जो होती है बिल्कुल उनके उम्र के हिसाब से, उनके अधिकारों के अनुसार उनको पूरी मिलनी चाहिए और मिल रही है. मुझे लगता है इंडिया के लिए, ये देश के लिए कितना एक चुनौती वाला भी मौका है, लेकिन एक हर वर्ग को, एक बचपन को, एक किशोर को समझने का भी, उनकी ज़िंदगी से उनकी नज़र को समझने का भी कितना एक अच्छा सुंदर मौका है. और हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है, सब मिलके हाथ मिलाकर इस बात को सेलिब्रेट करें कि परीक्षा केवल एक पहल है. बिल्कुल. लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट एक ज़िंदगी भर की श्रृंखला है, उसको तो करते जाइए. परीक्षा एक पहल है, आएगा जब भी आएगा, जब सिचुएशन अच्छी होगी हम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डील विद एग्जाम्स. डॉक्टर नागपाल, अगला जो प्रश्न है, ब्रजेंद्र साहू हैं, ये पुणे से ये हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं. हाउ शुड पेरेंट्स help children with online classes and school work so that their mental well-being remains healthy? Excellent. I think
ये सवाल पिछले 1-1.5 साल में जब से ये महामारी का प्रभाव हमारे देश में रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना हैज़ बीन very deep across the world. But I am a proud Indian, and I can tell you, you will also agree, ma'am, that we have crossed those challenges so well as a nation. We have come together, stood together, celebrated together that we are strong, we are united, and we can make a difference to each other. And that is the way how the school, the teachers can actually come together without creating a pressure for the children. देखिए जो प्रभाव होता है ना, एक प्रेशर टू परफॉर्म जो होता है वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, और उससे बच्चों को कई बार नींद नहीं आना, एग्ज़ाम का प्रेशर हो या पढ़ाई कंप्लीट करने का प्रेशर हो, और ये कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम टारगेट्स अपने लिए रखते हैं वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि हम जो एक इल्यूजनरी टारगेट्स लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा हमको अगर सब्जेक्ट मैटर हमें 10 दिन में कवर करना है, अगर माँ बाप ये उम्मीद रखते हैं तो बच्चे कई बार अंडर टेंशन आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं, वो खाना पीना, नींद और ये बातें भी उनकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, यहाँ तक कि गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी निकलता है। कई बार माँ बाप कहते हैं कि पता नहीं किस बात पे ये इतना रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी प्रतिक्रिया इतनी ज़्यादा हो रही है। समझने की कोशिश करिए कि बच्चे की मानसिकता में कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है। और मैं आपसे इस वक्त ये कहना चाहूँगा, एक ये नया सवाल है, शायद हम इसको विस्तार रूप से थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं बाद में, कि कुछ लक्षणों को पहचानना भी जरूरी है। नहीं, एक्चुअली इससे अच्छा? एक प्रश्न भी है। आरती राज है, वो हमें यूपी से पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने इसकी बात की तो मैं प्रश्न भी पूछ लेती हूँ। शी इज सेइंग डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं? बहुत ये मेरे मन में ये बात आ ही रही थी। स्टूडेंट स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो फिर कैसे पता करें कि उसको कोई इशू है या नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आपने वो सवाल पूछा है जो हर घर में, भारत के हर घर में इस वक्त जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की, उस पर जो स्ट्रेस अनजाने में पड़ता है। बच्चे बहुत खुश हैं, माँ बाप के साथ हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी अनजाने में कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस निवेदिता जी बच्चों की दिखाई नहीं देती हैं जी। और ये बहुत ज़रूरी है माँ बाप को कि जो हमें जज्बा बच्चों के चेहरे पे नहीं दिखाई देता, वो भी हमें बातचीत से समझना चाहिए। इसलिए ये जो सवाल है उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, मन की उदासी, बेबसी या कुछ हद तक एक निराशा कि भाई ये पढ़ाई कैसे होगी, मैं दोस्तों से कब मिलूँगा या मिलूँगी, मेरे को समझने वाले दोस्त जो हैं वो कैसे मेरे से संपर्क में आएंगे, या हम घर से बाहर कब निकलेंगे, हम एक नेचुरल हवा पार्क में या खेल के मैदान में कब महसूस करेंगे। ये बातें आज नहीं, पिछले कई महीनों से बच्चों के दिमाग में घूम रही हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आपने भी कहा कि हमें सच्चाई से जूझना है, हमें हकीकत से जूझना है। ये एक कहते हैं ना कि 100 साल में पहली बार कुछ अगर ऐसा आया है तो इस जनरेशन को शायद ये शिक्षा भी मिल रही है। लेकिन हम पहचानें ज़रूर, क्या बच्चा लगातार कहीं पे खामोश है या उसके मन की उदासी उसको बातचीत करने से रोक रही है। आप जब साथ में बैठते हैं, कभी खाना खाते हैं या बैठ के करीब डिनर के बाद लोग जब साथ में बातचीत करते हैं, आपको लगता है कि बच्चा आपका शामिल नहीं हो रहा है या अकेले रहने में ज़्यादा चॉइस दे रहा है, मायूस रह रहा है, प्लीज़ ऐसे टाइम पे एक संपर्क उसके साथ ज़रूर करिए। आप उसके साथ वॉक पे जाएं या पर्सनल अटेंशन दें। बच्चे डिप्रेशन में बड़ी आसानी से आ सकते हैं और ये गलत धारणा है कि 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा डिप्रेस नहीं होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसके लक्षण उदासीनता के अलग होंगे। आपको उदाहरण दे दूं मैं, 4 साल का बच्चा बहुत रो सकता है अगर वो उदास हो। 6 साल का बच्चा कई बार बहुत हिंसक भावना दिखा सकता है अगर वो उदास हो। 12 साल का बच्चा अपने आप को कहीं कोने में ले जाके बैठकर बातचीत नहीं करना चाहेगा, उदास हो सकता है। 14, 15, 16 साल का बच्चा हिंसक भावना दिखा सकता है, एग्रेशन। तो हम सब अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके दिखाते हैं। अगर हम मन से उदास हैं, बेबस हैं, तो पहचानिए बच्चे के बिहेवियर गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उसका जो एहसास हो रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में उस वक़्त, वो हमको पहचानना है। हम कभी बच्चों के इमोशंस को दबाएं नहीं, हम उनको साकार करें, एक मौजूदा उनको प्लेटफॉर्म दें और उसको ये हकीकत दें कि भाई हम हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी मन की बात को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं।
आप देखिएगा कि बच्चा कभी उदास नहीं होगा, वो अपनों से डिटैच हो जाता है क्योंकि उसकी सुनाई नहीं होती है, क्योंकि उसकी अपनी कोई हो सकता है कहीं उसको स्कूल की कोई प्रॉब्लम हो, कोप अप नहीं कर पा रहा हो, जी या कोई बुली होता है, बच्चा बुलीड होते हैं। हमें याद है कि स्कूल के टाइम में कितने कितने टाइम पे कोई ना कोई बुली होता था, अभी भी होते हैं। लेकिन जब बच्चा किसी बात से तंग है, कई बार डर से शेयर नहीं करता नहीं, है वो ना अपनी जी, बात कह नहीं पाता। कह नहीं पाता, और वो उसको लगता है कि अगर मैं अपनी मन की बात कह दूं कि मुझे उस बच्चे से डर लगता है, या किसी को घर के माहौल में किसी से डर लगता है, या कोई बच्चा शोषण का शिकार है। जी याद रखिए कि बच्चे की मन की बातों में इतनी विभिन्नता होती है, एक रेनबो के जैसा है। यू नो निवेदिता, देयर हार्ट इज लाइक अ रेनबो, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 7 कलर्स, बिल्कुल। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड मोर टाइम विद आवर चिल्ड्रन। कहते हैं ना कि बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, ये मुहावरा है ना, लेकिन वो हकीकत भी है। उनको टाइम सिर्फ देना नहीं है, उनके टाइम उनके चेहरे के साथ, उनकी चेहरे की रौनक के साथ बिताना है हमको। आप देख लेंगे कि डिप्रेशन को समझ पाएंगे। और अगर आपको लगा कि बच्चा डिप्रेस है, वो खाना नहीं खा रहा है या नींद नहीं आ रही, ज़रूर स्कूल की काउंसलर से संपर्क करें, या अपने घर के निकट कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर संपर्क करें। कभी ये मत सोचिए कि कलंक है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, क्योंकि आपने ये केस स्टडी बताई है, कि कई बार हम समझते हैं कि मानसिकता के बारे में चर्चा करना कलंक है। भाई, आप बुखार है, खांसी है, पेट में दर्द है, हम अपने डॉक्टर से या घर में सलाह लेते हैं ना, तो मन की बातों के लिए क्यों नहीं? इट्स नॉट अ टबू टू टॉक अबाउट। एब्सोल्युटली, Yeah. देयर इज नो स्टिग्मा अबाउट मेंटल हेल्थ। गलत धारणा है अगर कोई आपसे कहे कि भाई नहीं नहीं ये बात मत करिएगा बाहर, ये बात घर में शेयर मत करना। याद रखिए कि कई बार शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा मानसिकता से रिलेटेड होता है। बिल्कुल। अगर मन टेंस है, बच्चे का दिमाग टेंशन में है, पेट में दर्द हो सकता है, कई बार दिल खोल के सांस लेने में तकलीफ होती है। पेट में दर्द के साथ साथ कई बॉडी में भी दर्द होने शुरू होते हैं। ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है कि माइंड बॉडी का रिलेशनशिप बड़ा अटूट है, और जो जो तकलीफ़ें हम मन से महसूस करते हैं, हम उसको जितना वेंटिलेशन देंगे, एक दरवाज़े खिड़की अपने इंद्रियों के खोलेंगे, हम सरलता से खुश और सूक्ष्म भी रहेंगे। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई द सिम्टम्स इन द चिल्ड्रन। खासकर डिप्रेशन के साथ एक एंजाइटी भी बहुत है आजकल, जिसको हम घबराहट, बेचैनी, कई बार मन की दहशत भी कहते हैं। नेवर गिव इट लेस इम्पॉर्टेंस। याद रखना, घबराहट कई बार हमारे को अपने से भी दूर कर सकती है, और इसलिए बच्चे के करीब रहना, आपकी घबराहट को भी बच्चे के करीब ना आने देना। कई बार पेरेंट्स की एंजाइटी आजकल बहुत है। देर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु से दैट दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल टाइम फॉर माई फादर। करोड़ों लोगों के कई बार सैलरीज कम हो जाना, जॉब चले जाना, कंपनीज बंद हो जाना। याद रखिए, कोशिश करिए कि बच्चों तक वो तनाव मत पहुंचने दीजिए, है ना? आप मानते हैं? जी, I mean, this is such a crucial issue, and you've explained it and you've addressed it in such great detail. Thank you for that, Dr. Thank you. Nagpal. Thank you. We have another very, very important question. What do children with special educational needs Very do good. during exams especially during the pandemic for motivation? And this question has been asked by Vishwajit Vaidya from Karnataka. Thank you so much. Children with special need, Nivedita, is my favorite area, and करोड़ों बच्चे, करोड़ों नागरिक हैं हमारे देश में जो स्पेशल नीड्स के नागरिक हैं, और इनको तमाम अपॉर्चुनिटीज़, पूरे अधिकार शिक्षा प्रणाली में, स्वास्थ्य की प्रणाली में पूरे मिलने चाहिए, और मिलते भी हैं, और हमको इसका एडवोकेट बनना चाहिए। ये अधिकार है कि अगर कोई भी कमी है, फॉर एग्जाम्पल कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, या डिसग्राफिया है, या सेरेब्रल पैल्सी है, या ऑटिज़म है, क्या बच्चे को थोड़ा सा काबिलियत में कमी है, उसके लिए सुविधा हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, अब तो इतने सारे जो तमाम डिसेबिलिटीज़ हैं वो RPWD एक्ट में जो एनुमरेटेड हैं, उनके लिए शिक्षा प्रणाली में भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कितना अच्छा प्रचार हो रहा है। मेरा एक सिंपल सा कहना है, ऑल चिल्ड्रन टू बी गिवन ऑल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग।
दैट मीन्स हम एक इंक्लूसिव कल्चर है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव सोसाइटी है। हमारा संविधान हमें इंक्लूसिव सोसाइटी कहता है ना जी, अनेकता में एकता। तो एक क्लासरूम में अनेकता में एकता क्यों ना हो? अनेकता में बच्चे को वो चुनने दीजिए जो उसके मन पसंद का हो सकता है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए हमें स्पेशल सपोर्ट सिस्टम बनाने होंगे, जो स्कूल की जिम्मेवारी भी है और परिवार भी उसको एनकरेज करे। थोड़ा सा स्पेशल टाइम आपको देना होगा, लेकिन देखिए स्पेशल नीड के बच्चों के लिए और स्पेशल टाइम देना होगा जी। स्पेशल प्यार मोहब्बत देना होगा, स्पेशल बातचीत करनी होगी और स्पेशल खेल कूद के सामान और जरिए भी देने होंगे, इंडोर आउटडोर। क्योंकि बच्चे जो कहते हैं ना कि मन के इतने सच्चे होते हैं। और वो एक छोटा सा एक मुखड़ा मुझे याद आ रहा है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, वो गाना जो हम बचपन में सुनते थे। पूरा संसार है ना जी, पूरा संसार उसकी मुट्ठी में है, आप उसको वो दुनिया दीजिए। सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर a lot more special for the facility we give them. So give them all the facility to prepare for the board exam. आपको ये भी बता दूं, आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पास इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, इतने अच्छे प्रोविजंस हैं, एंड वी सैल्यूट द सीबीएसई फॉर गिविंग so many good facilities for the special need children. All children move ahead together. No child left behind. Every child can learn with a different method. ये मुहावरे मुझे याद हैं। तो आप कभी भी डिस्करेज ना हो, ना बच्चों को डिस्करेज करें। भले कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, मेंटल डिसेबिलिटी हो या कोई सोशल डिसेबिलिटी हो, याद रखिएगा हर बच्चे के लिए कोई ना कोई नुस्खा है जो उसके लिए शिक्षा प्रणाली दे सकती है आगे बढ़ने के लिए। आर्ट्स हैं, गेम्स हैं, म्यूज़िक है, कई तरह तरह के बोर्ड एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, जो बच्चा एक मेनू कार्ड की तरह, एक तमाम एक फैसिलिटी की तरह चुन सकता है। वन नीड नॉट गो बाई कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स, जैसे वो 4-5 रेगुलर सब्जेक्ट जो 10th में होते थे। यू कैन चूज सो मेनी थिंग्स नाउ। So the world is your playground. The world is your playground. Wonderful. You have the right to choose. You can choose, but you should allow children to become learners of all kinds. Yes. We have about 5 minutes. Probably Sure. we can take 2 more questions. I think we can. I get tensed whenever my friends or parents inquire about my preparation. Should I stop talking to them? This is Dhirendra from Delhi. Very, very good evening, Dhirendra. I think it's more than a question, it is an answer already. You get tense, that's the answer. There's no doubt. ये बहुत ज़रूरी है धीरेन्द्र कि हम आपके सवाल से तमाम लोगों को, हमारे देश के लोगों को ये संदेश दें कि वार्तालाप, बातचीत, एक इमोशन कम्युनिकेशन का, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है हम सब के लिए। आज आपने ये सवाल से हमसे कम्युनिकेट किया, निवेदिता जी को कम्युनिकेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल ने कहा था। सो हम सोशलाइज करें सबसे पहले अपने घर संसार में, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में। हम कैसे भी हों, कहीं के भी हों, कोई भी बैकग्राउंड के हों, हम इतने डाइवर्स हैं जो दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है। यू विल एग्री विद मी, इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ में बहुत माहिर हैं, आपसी संवाद के लिए। कम्युनिकेट करिए। ये फैमिलीज़ के लिए सबसे पहले मैं एक संदेश नहीं, मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मन तक पहुँचें, बच्चों के दिमाग तक नहीं, उनके मन तक पहुँचें, उनके मन की गतिविधियों को, मन के संगीत को समझें, उनके स्वर को समझें, सुर को समझें, साज को भी समझें, बिकॉज दे आर द पीपल हु विल लीड अस टुमारो व्हेन वी आर ओल्ड। तो आज बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो आप बता रही हैं, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? संवाद से आएगा। कभी भी डिस्करेज ना करें, कभी भी ये ना बोलें कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ना बातचीत करने में भी बहुत बातचीत है, क्योंकि वो बच्चा ये समझ जाएगा कि आप उससे नाराज़ हैं, आप उसके मार्गदर्शक हैं, तो आप क्यों नाराज़ हैं। तो संवाद को करिए, अपने अहंकार को, अपने कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो हम कहते हैं स्वार्थ को पीछे छोड़ दीजिए। देखिए जब परिवार में हम बड़े होते हैं, क्लासरूम में बड़े होते हैं, स्वार्थ और अहंकार किस बात का? वी हैव टू ग्रो टुगेदर। टुडे वी आर अ प्राउड नेशन बिकॉज वी आर अ डाइवर्स नेशन ग्रोइंग टुगेदर। वी आर प्राउड टू बी an Indian today because we are so diverse. You travel 100 kilometers in India, everything changes from language to culture to background.
but we celebrate that, isn't it? So in the family, please celebrate your communication. संवाद और वार्तालाप को कभी मत कम करिएगा. अगर हम नाराज भी हैं ना बच्चों से, उनके साथ उनके बैठ के उनकी कलाई पकड़ के उनके कंधे को सहारा देते हुए बोलिए कि हमें थोड़ी सी नाराज़गी है लेकिन प्यार ज़्यादा है. हाँ, धीरेन्द्र का प्रश्न यही था कि मैं टेंस हो जाता हूँ अगर मेरे जो मित्र हैं जी. और जो मेरे पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे टेंस हो जाते हैं, अगर उनसे उनके एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी की जाए तो क्या उन्हें बातचीत बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बातचीत. और इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी भी तो संवाद ही है, लेकिन इंक्वायरी को ना एक इन्विजिलेशन ना समझिए, मेरा ये कहना है. इंक्वायरी को प्यार मोहब्बत से भी देखिए. कम्युनिकेशन के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं. कई बार एग्रेसिव कम्युनिकेशन जो होता है शायद वो कभी कभी इंक्वायरी बन जाता है, लेकिन लवेबल कम्युनिकेशन शायद संवाद बन जाता है. तो अपने तौर तरीके, अपने मिजाज को मेंटेन करते हुए कनेक्ट जरूर होइए. लेकिन कभी भी मेरा संदेश है धीरेन्द्र जी, कोई भी आपसे अगर लगता है कि बातचीत कम कर रहा है, आप ही एक कदम उठा लीजिए और बोलिए कि भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मेरे से नाराज़ हैं, या मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ. क्योंकि देखिए इसमें बात पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात ह्यूमन नेचर की हो रही है. और हम कैसी भी परिस्थिति में हो, ये संदेश आपके लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, दोस्तों के लिए है, तमाम अभिभावकों के लिए है, टीचर्स के लिए भी है. कम्युनिकेशन का जो बेडरॉक है, कम्युनिकेशन का जो एक फाउंडेशन है, वही हमारी सबसे बड़ी नींव है और उसी में ही मोहब्बत है. उसको कभी मत कम करिए. तो क्या हुआ अगर कोई प्रिपरेशन थोड़ी कम चल रही है, आप एनकरेज करिए. याद रखिए कि जब इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो कई मंजिलें बिना पढ़े लिखे भी तय हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी याद दिला देती है सब्जेक्ट को, ऐसी चीज़ों को. और टेंशन में, एंग्जाइटी में, बहुत ज़्यादा पैनिक में कई बार हम पढ़े लिखे शब्दों को भी भूल जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. तो बच्चों से ये निवेदन है कि एग्ज़ाम का समय आएगा, जब भी आएगा, आने वाला है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये बातों को पीछे छोड़ के जाइएगा. नाश्ता पूरा करके जाना होता है और कंसंट्रेशन अपना जारी रखने के लिए लंबी लंबी सांसें जरूर लेनी होती हैं. नहीं, अभी तो एग्जाम्स खैर ऐसा रोज न्यूज़ आ पढ़ने रही के लिए भी कि- हो सकता है. हाँ, न्यूज़ भी आ रही है कि पोस्टपोन हो चुके हैं, तो जी. उस तरह की एंजाइटी से भी सब लोगों को मिल करके उससे निपटना है. और बिल्कुल. तो डॉक्टर नागपाल, आपने इन सारे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं, जो पहलू हैं, उनसे हम उनके बारे में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. और जो बच्चे और पेरेंट्स और शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं आज इस परीक्षा पर्व 3.0 की इस कड़ी में, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्ते. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.